Hello students and welcome to the NEET Express course. Today we are going to discuss another chapter of class 11th, which is a very important chapter from NEET point of view. It is the cell, the unit of life. Cell, as we all know that it is the structural, basic, fundamental unit of life. सेल से चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है या कुछ ऑर्गेनिजम्स में देर आर मल्टीपल सेल्स. So, the organism can be unicellular or multicellular. If cell is not present in an organism, you cannot consider that organism as living. The cellular organization is the defining property of life. ये हमने डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में. तो सेल होना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर सेल होगा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो बहुत सारे सेल्स हो, बट सेल होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. प्रेजेंस ऑफ सेल इज़ very important for an organism. In this chapter, we are going to study about cell in detail, about the components of the cell, cell organelles, cell key membranes, and everything related to the cell. So let's begin with our class. Cell is, I just told you, it's a basic, सबसे छोटा, सबसे basic unit है life का. Structural, पूरा organism group of cells से बना होता है. That is a structural. सेल के कंपोनेंट्स ही फंक्शन करते हैं तभी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है. तो फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. पूरी लाइफ एक्चुअली पूरा ऑर्गेनिज्म ही बिल्ड हो रहा है सेल से. जैसे कि बिल्डिंग बन रही है ब्रिक्स से, सिमिलरली ऑर्गेनिज्म बन रहा है सेल के ग्रुप से. Anything less than a single cell cannot be considered as independent or living. For example, viruses. वायरसेस में लिविंग कंपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो मल्टीप्लाई कर सकता है. होस्ट के अंदर जब वो जाता है, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है एंड इट कैन मल्टीप्लाई. बट वायरस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग एंटिटी. वाई? Because it is not made up of a complete cell. It is a acellular entity. Okay. So, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करने के लिए एटलीस्ट उसमें एक सेल तो होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. दिस वी डिस्कस इन द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एज वेल. Cell theory, it was given by Slidden and Chekwan. All plants and animals are made up of cells. चाहे जितने भी plants हैं world में, जितने भी animals हैं, all are made up of cells. Okay. They are, but actually Slidden and Chekwan, they failed to define the origin of cells. कि कैसे न्यू सेल्स अराइज होते हैं. उन्होंने ये तो बताया कि सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स सेल से बने हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कैसे बन रहा है प्लांट्स और एनिमल्स में. रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था. उन्होंने बोला कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले से सेल है उसी से ही न्यू सेल अराइज होता है. सो ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स. Omnis cellula e cellula, which means cells arises from pre-existing cells. He modified the cell theory. उन्होंने बोला कि अब जो postulates होंगे सेल थ्योरी के वो ये होंगे कि all the organisms are made up of cells and its products. तो सारे organisms सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं. New cells arise from pre-existing cells, omnicellula e cellula. All the activities are the result of interaction between the constituents of the cell. So cell के constituents में interaction होती है, उसी की वजह से सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सारे एक्टिविटीज़ और फंक्शंस आर ड्यू टू द इंटरैक्शंस बिटवीन द constituents of cell. Exceptions are viruses. Mature RBCs, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता. Mature sieve tube also lacks nucleus. Which is also called as brain of the cell. Moving ahead.
on the basis of presence or absence of nucleus. Well defined proper nucleus cell के अंदर है या नहीं है, इस basis पे we have two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. Caryo word आ रहा है carrion से, carrion का मतलब है nucleus, prokaryotic मतलब before nucleus, primitive nucleus, proper well defined nucleus in cells में नहीं है. So prokaryotic, here nucleus is absent. U means true. Karyomet derives from the word carrion, जिसका मतलब है न्यूक्लियस. तो इन सेल्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलते. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. Only organelle which is found in the prokaryotic organism. प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं. प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है मोनोरेंस, जिसमें आपके बैक्टीरिया आ गए, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, आर के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कौन कौन से आ गए? जैसे कि आपका हो गया लाइसोसोम, वैक्यूल, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. देन यू हैव Golgi apparatus, and double membrane bound organelles में you have chloroplast, mitochondria, okay. यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में यू हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में 70s और 80s क्या है. यूकैरियोट्स में दोनों मिलते हैं, 70s भी और 80s भी. 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है यहाँ पे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. Plasma membrane is common in prokaryotic and eukaryotic cell. Phospholipid bilayer ही होती है. सेल एनवेलप की बात करते हैं. सेल एनवेलप में आपके पास आउटर लेयर है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की, उसके अंदर सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, जो ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में प्रेजेंट हो. इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. It is made up of glycoproteins and glycolipids. Glyco is sugar, the sugar proteins and sugar lipids. It may be loose or slimy. अगर वो loose और slimy है तो उसे हम बोलते हैं slime layer, या thick और tough है तो हम उसे बोलते हैं capsule. Slime layer सेल को adhesion में हेल्प करती है, किसी सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प करती है. वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है फ्रॉम दी बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया से वाटर लॉस ना हो, इसको प्रिवेंट कराती है स्लाइम लेयर. ये थिन लूज शीट है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की. कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम में हाइड करने में हेल्प करता है. तो अगर बैक्टीरिया होस्ट के अंदर एंटर कर गया है तो बैक्टीरिया को होस्ट का इम्यून सिस्टम मारने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट्स अ फॉरेन बॉडी. बट अगर उसके आसपास कैप्सूल है, बैक्टीरिया के आसपास कैप्सूल है, तो कैप्सूल के लेयर उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी.
So capsule is basically for protection and it is thick and tough layer. Then glycocalyx के अंदर आया आपका cell wall. Cell wall is found in all prokaryotes except mycoplasma. माइकोप्लाज्मा के आसपास सेल वॉल नहीं होती है, इसी वजह से वो अपनी शेप बार बार चेंज कर सकता है, इसलिए हम माइकोप्लाज्मा को प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं. बहुत सारी मॉर्फोलॉजी अटेन कर सकता है वो, और उसे हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं. इट कंटेन्स NAM and NAC sugar, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, and protein. It provides mechanical strength. बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग. यूकैरियोट्स में अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई के अंदर मोस्टली काइटिन की बनी होती है. काइटिनस सेल वॉल होती है. फंजाई में ओमाइसिटीज के मेंबर के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है. ओमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं. ओके, फंक्शंस क्या है सेल वॉल के? आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट इज़ बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस एकदम से एंटर नहीं कर सकते. प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, क्योंकि हार्ड लेयर है तो वो सेल को बर्स्ट करने से प्रिवेंट करेगी. इट फॉर्म्स सेल टू सेल जंक्शंस, दो सेल्स के बीच में जंक्शन बनाने के काम आएगी. अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल वॉल के अंदर सब्सटेंस जा भी सकता है, सेल वॉल से बाहर भी निकल सकता है सब्सटेंस. It provides shape and rigidity to the cell because it is a hard layer. It prevents the cell from mechanical injury. कोई भी चोट से सेल को बचाएगा. सेल वॉल के अंदर, सेल एनवेलप के अंदर पहले आपकी ग्लाइकोकैलिक्स आ गई, फिर सेल वॉल आ गई, और उसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ द लिविंग मेम्ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सब सब्सटेंस को अलाउ नहीं करती कि आप पास कर जाओ, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करते टू पास थ्रू. मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल विच वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. It is the outermost boundary of animal cell because animal cell के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, तो ये एनिमल सेल की सबसे बाहर की कवरिंग है. द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड इन 1950s जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया था. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखता है, बहुत डिटेल में चीज़ों को देख सकता है और दिखाने में हमें हेल्प करेगा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इतना क्लियरली हमें नहीं दिख पाता था. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा लेमा के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया. द बायोकेमिकल स्टडीज ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन एराइथ्रोसाइट्स, ह्यूमन के ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स की स्टडी की गई एंड रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स. तो ये देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 52% प्रोटीन्स होता है और 40% लिपिड्स होता है. इट इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ये क्वासी फ्लूइड है नेचर में. सेल मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल्स की या प्लांट्स किसी की भी, वो क्वासी फ्लूइड है, मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो फ्लूइड में फ्लोट करते हैं. The components of plasma membrane are phospholipids or phosphoglycerides, proteins, cholesterol, glycoprotein or glycolipids. The amount of phospholipids and proteins is variable.
इन मेमेलियन आरबीसीज प्रोटीन 52% है और फॉस्फोलिपिड 40% है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड ग्रुप होता है। इट हैज़ अ हेड लाइक दिस, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब वो वाटर लविंग हेड है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये वाटर है, एक्वस कंडीशन है, तो हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स दी वाटर। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर के अवे मूव करती है। तो ये दिस इज वाटर, तो वाटर से अवे है, अंदर की साइड टेल है। तो यू हैव हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। हेड जो है वो पोलर है और उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, और टेल जो है वो नॉन पोलर है। इट हैव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट से, वाटर से अवे मूव करता है, तभी वो अंदर की तरफ टेल है, बाहर की तरफ हेड है, और वाटर आपका बाहर की तरफ है। एक्वस एनवायरनमेंट बाहर की तरफ है। So this is the hydrophilic head. Hydrophobic tail. ठीक है, यहाँ पर ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर की तरफ है, ठीक है। ये वाला प्रोटीन जो है वो पार्शियली इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो आधे बाहर और आधे अंदर हैं। दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं, दीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कौन से बेसिस पे डिफाइंड है? ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे इन्हें निकाला जा सकता है, किस बेसिस पे इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स को आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दे आर इजी टू एक्सट्रैक्ट। इंटीग्रल प्रोटीन्स दो तरह के हैं, पार्शियली इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन। पार्शियली इंटीग्रल आधे अंदर आधे बाहर है, ट्रांस मेम्ब्रेन पूरे अंदर है। पार्शियली इंटीग्रल को निकालना डिफिकल्ट है, पर ट्रांस मेम्ब्रेन को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की एक्सट्रैक्शन के लिए आपको डिटर्जेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। So this was about the plasma membrane. Now we are going to study the genetic material of bacteria. Bacteria के अंदर, this is the bacteria. It is a prokaryotic cell. Prokaryotic cell is bacteria. तो prokaryotic cell का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो ये मतलब नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल सारे में स्कैटर्ड होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आपका ऐसे बाउंडेड होता है, इट इज compactly arranged and it is bounded by proteins called as polyamines. तो it lack well defined nucleus, genetic material is not scattered. ये जो बाउंडेड है इसको हम बोलते हैं जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस एक्चुअली वो होता ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है उसके पास। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है विच इज पैक्ड बाय पॉलीअमाइन प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम है पॉलीअमाइन प्रोटीन्स, जो डीएनए के अराउंड डीएनए को पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं इन दिस मैनर। This DNA is rich in guanine and cytosine. और guanine और cytosine के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। That is why इन 3 ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा आपको हीट अप्लाई करनी पड़ती है। That is why इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। Then apart from the chromosomal DNA, you have double circular एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है।
इसका बैक्टीरिया के सर्वाइवल में इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं. सो दे प्रोवाइड जीन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है. इट प्रोवाइड स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से बैक्टीरिया को एक स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिल जाता है बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड. ओके, मूविंग अहेड. बैक्टीरिया के अंदर कुछ सरफेस एक्सटेंशंस भी होती हैं. जैसे ये सेल वॉल था. सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज लाइक दिस. Membrane enfoldings of plasma membrane is called as mesosome. Is called mesosome. मीजोजोम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है. तो ये आपकी जो सरफेस एक्सटेंशन है बैक्टीरिया की, जो अंदर की साइड में है वो है मीजोजोम, जो मैंने अभी बनाई. सो ये आपका फ्लैजिलम है, लंबा सा. दिस इज पिलाई एंड दीज आर फिम्ब्रिया, ठीक है. पिलाई फिम्ब्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं. पिलाई एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो पाइलिन प्रोटीन से बना हुआ है. ये दो बैक्टीरिया को मेटिंग करने में हेल्प करता है, तो हम उसको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं. कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. ये थोड़ा लार्जर साइज में होते हैं और नंबर इनका स्मॉल होता है. फिम्ब्रिया जो होते हैं ये 3 to 10 नैनोमीटर थिक होते हैं. स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट which is made up of fibrillin protein. ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रॉक या होस्ट टिश्यू. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है. Got my point? Moving ahead. Now we are going to discuss about the ribosomes which are present in the prokaryotes. Prokaryotes में 70S type of ribosomes होते हैं. ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा लार्ज और एक स्मॉलर. The larger subunit in the 70S type of ribosomes is 50S and smaller is 30S. अब ये जो S है that is Swedberg constant, बिकॉज इसको सबसे पहले स्टडी किया था स्वीडबर्ग, एक साइंटिस्ट है. इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. ये जो है आपका 50S और 30S, दिस इज़ नॉट एक्चुअली द वेट ऑफ द राइबोसोम. जब हम राइबोसोम्स का सेडिमेंट करते हैं तो जिस लेवल पर जाकर वो सेडिमेंटेशन ट्यूब में सेडिमेंट होते हैं उस लेवल पे एक नंबर लिखा होता है. उसी नंबर के बेसिस पे हम उसे 50S या 30S बोलते हैं. तो 50S वाला राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है, मतलब 70S राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 50S पे जाके सेटल होता है और उसका स्मॉलर सब यूनिट 30S वाले लेवल पे जाके सेटल होता है. तो यूजुअली अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका साइज है 15 to 20 नैनोमीटर. 70S has two subunits, 30S and 50S, smaller subunit, larger subunit, which are joined by magnesium ions. S here stands for sedimentation coefficient or Swedberg constant. Several ribosomes may be attached to single mRNA thread. तो इस condition को हम बोलते हैं polyribosome और polysome. Ribosome is made up of rRNA, ribosomal RNA and proteins. यूकैरियोट्स के अंदर यू हैव 80S टाइप ऑफ राइबोसोम. वहाँ पर लार्जर सब यूनिट इज
60s, and smaller subunit is 40s. Moving ahead, you can note this down if you want to. Moving ahead, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शॉर्ट फॉर्म में मतलब बेसिकली 4 ऑर्गेनल्स आते हैं जो आपस में सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम. तो द कोऑर्डिनेट नेटवर्क ऑफ 4 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं. Mitochondria, plastids, peroxisomes, centrioles, etc. they work independently. They are not the part of endomembrane system. So first of all, let's discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum term was given by Porter. यहाँ पर जो endoplasmic reticulum होते हैं वो ट्यूबुलर हो सकते हैं, ट्यूब लाइक हो सकते हैं, सिस्टर्नल इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, या वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है. दे कॉज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के काम आते हैं. दे हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में अगर आपको कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे फॉर्म्स प्लाज्मोडेस्मेटा इन प्लांट सेल. 2 प्लांट सेल्स को ज्वाइन कराता है प्लाज्मोडेस्मेटा, तो वो बनाने के काम आता है ER. इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आते हैं ये. दे एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये आपका सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं. This is ER. This is nucleus. This is plasma membrane. Okay. Its surface area is far more than plasma membrane. Plasma membrane से बहुत ज़्यादा surface area होता है इसका. On the basis of ATS ribosomes attached on the extraluminal surface. ये जो बाहर के surface है, ये इंट्रालुमिनल हो गया, लुमिनल स्ट्रक्चर है, और एक्स्ट्रालुमिनल ये बाहर का है. बाहर के स्ट्रक्चर पर ATS राइबोसोम्स किस तरह से अटैच्ड हैं, उस बेसिस पे ER इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से बाहर का सरफेस रफ हो गया. और अगर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है तो वो बाहर का सरफेस स्मूथ रहेगा, तो इट इज़ कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स स्टडी अबाउट इट. Rough endoplasmic reticulum is mostly tubular and cisternal. It contains ATS type of ribosomes on its surface. Rough endoplasmic reticulum का काम क्या है कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस और प्रोटीन्स के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है. न्यूक्लियर एनवेलप बनाने के काम आता है, और वो बहुत सारे लाइसोसोम्स के एंजाइम का प्रिकर्सर होता है. मतलब लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन्हें बनाने के काम आता है. Then we are going to discuss about smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum is mostly tubular or vesicle. Tubular होगा या फिर vesicular होगा. Rough endoplasmic reticulum is tubular or cisternal. ठीक है. Smooth endoplasmic reticulum lack any ribosome on their surface. Ribosome attached नहीं है तो वो smooth है. Abundant in muscle cells, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, मसल सेल्स के अंदर इन्हें हम, और ये मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. मेन फंक्शंस क्या हैं? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाने के काम आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करते हैं, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Next, we are going to talk about the Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. तभी इसका नाम Golgi apparatus पड़ा है. It is densely stained structure जो न्यूक्लियस के पास मिलता है. It is made up of cisternae, tubules and vesicles.
तो सिस्टर्न इस तरह का हो गया, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बना होता है। इन प्लांट्स अनकनेक्टेड गोल्जी प्रेजेंट होते हैं, मतलब गोल्जी आपस में कनेक्टेड नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। फंजाई के अंदर यूनिसिस्टर्नल गोल्जी होता है, एक ही सिस्टर्न होता है, ठीक है। गोल्जी के पास दो फेसेस होते हैं, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज, और कॉन्केव ट्रांस और मेच्योर फेज। Immature vesicles from ER enters the Golgi to undergo modification. तो जो immature vesicles होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो गोल्जी अपरेटस में एंटर करते हैं और वहाँ जाके वो मॉडिफाई हो जाते हैं। Then lysosome, it was discovered by Christian Dev Duve. They are formed as a result of packaging in the Golgi apparatus. Golgi apparatus के अंदर पैकेजिंग होती है एंड उसके बाद हमारा लाइसोसोम बन जाता है। लाइसोसोम को हम ऑटोफैगोसोम भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेसिस बोलते हैं उन्हें हम। उन एंजाइम्स का काम क्या है कि जब भी सेल ओल्ड हो रहा होगा या लाइसोसोम में कोई प्रॉब्लम है तो वो एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और लाइसोसोम हैज़ द कैपेबिलिटी टू बर्स्ट एंड डिसॉल्व द होल सेल, ठीक है। तो इसलिए हम इसे सेल्फ ईटिंग भी बोलते हैं, वो खुद को भी खा सकता है, सेल्फ डाइजेस्टिंग वेसिकल है। इट इज़ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, इसकी कोई फिक्स शेप या साइज़ नहीं है, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, हाइड्रोलेज एक्सेट्रा। These hydrolytic enzymes are active at acidic pH, मतलब लो pH में ये enzymes एक्टिव होते हैं और अपना डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल सेंटर में लोकेटेड होता है और अप्रॉक्सीमेट 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल को ऑक्यूपाई करता है। तो ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल्स। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं, जनरली या तो एब्सेंट होंगे या वेरी स्मॉल इन एनिमल सेल्स। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मतलब एनर्जी यूज़ करता है जब कंपाउंड कोई अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। Gas vacuoles provides buoyancy and they are also called as pseudo-vacuole, false vacuole. इसके आसपास टोनोप्लास्ट नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये आपको प्रोकैरियोट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के 3 टाइप है, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सैप वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स फूड स्टोर करते हैं, प्रोटिस्ट में मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ये प्रोटिस्ट और अमीबा में मिलते हैं। सैप वैक्यूल्स फ्लूइड और आयन स्टोर करते हैं, ये आपको प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और ये आपकी फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और फूड के अंदर जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सो बिकॉज ये एटीपी बनाने में हेल्प करता है और एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. The term was given by Carl Bender. It is stained by Janus green stain and it is a super specialized stain जो particularly mitochondria को ही stain करता है। इसकी जो shape होती है वो sausage या cylindrical shape आप देख सकते हैं। Diameter 0.2 से 1 micrometer होता है या length इसकी 1 से 4 micrometer है। Diameter 0.2 से 1 micrometer and length is 1 to 4 micrometer. Double membrane bound organelle है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर वेरी कर सकते हैं। ये आपकी है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस।
यहाँ पर आपके इनर मेम्ब्रेन पे यू हैव एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। ये आपके राइबोसोम्स है जिसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अटैच्ड है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। दिस इज सिस्टर्न। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से होती है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फूड का जब ब्रेकडाउन होगा उस ब्रेकडाउन में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से एटीपी बनता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, दैट इज वाई इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ऐसे ही नहीं, सेल की अगर डेथ करानी तो प्रोग्राम्ड वे में माइटोकॉन्ड्रिया करा सकता है। इट प्रोवाइड जीन्स फॉर द मैटरनल इनहेरिटेंस। समझिए ध्यान से, एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं दोनों के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल एग से भी आ रहा है, स्पर्म से भी आ रहा है, बट साइटोप्लाज्म एग का एंटर करता है इन द जाइगोट। तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। प्लांट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं। एनिमल्स के केस में ओनली माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो एग से आ रहा है, तो मदर से आ रहा है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस, जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की जीन्स हैं वो मदर से आ रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मैटरनली इनहेरिटेड है। तो प्रोवाइड जीन्स फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स टर्म वॉज गिवन बाय अर्न्स्ट हेकल। इसका साइज है 4 to 8 माइक्रोमीटर लेंथ। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है ये प्लांट्स का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ग्रीन प्लांट्स में, यूग्लिनॉइड्स में, डाइनोफ्लैजेलेट्स में और क्राइजोफाइट्स, डायटम्स, डेस्मिड्स में ये आपको ऑर्गेनल मिलता है। प्लास्टिड्स के टाइप्स क्या क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। रेड, ऑरेंज, येलो कलर इम्पार्ट करता है वो प्लांट के पार्ट्स को। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थाइलोकॉइड्स बोलते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। This is the outer membrane. This is the structure of chloroplast. This is the inner membrane. जो लिक्विड पार्ट अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉइन्स की तरह, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। दिस इज थाइलोकॉइड। दिस इज थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड के ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रैनम, और ग्रैनम का प्लूरल होता है
grana. These grana are joined to each other by stroma lamellae. यहाँ पे अंदर आपके राइबोसोम्स होते हैं. These are 70s type of ribosomes. जेनेटिक मटेरियल होता है. और यहाँ पर आपके पास these are starch granules. Okay. Now we are going to discuss about nucleus. Nucleus is a double membrane bound organelle. It is present in eukaryotes. Prokaryotes में absent होता है. Most of the organisms are uninucleate. उनमें single nucleus ही होगा. And they have some कुछ organism ऐसे होते हैं जिनमें binucleus होता है, मतलब 2 nucleus होते हैं, जैसे कि paramecium. तो paramecium में एक nucleus बड़ा होता है macro और एक छोटा होता है micro. Macronucleus metabolic process कराता है और micronucleus उसमें genetic information होती है. Some are multinucleated as well, जैसे कि syncytium और cenocytic condition. They are found in liquid endosperm of coconut, tapetum. Tapetum is an anther wall layer. Some cells lose their nucleus at maturity. Enucleated हो जाता है, जैसे कि RBCs और आपका mature sieve tubes. So with this we have completed this chapter. I'm going to discuss some important questions from this chapter, which are going to give you an idea कि इस chapter से किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? हमने आज की क्लास में डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन के टाइम पर फूड का ब्रेकडाउन होता है. फूड के अंदर ही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज. उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है which is converted into form of ATP in the mitochondria. So answer to this question is mitochondria. लाइसोसोम, राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट में ऐसा नहीं होता, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. Moving ahead, which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? Cell wall, nuclear membrane, plasma membrane या glycocalyx? हमने डिस्कस किया था कि glycocalyx is the outermost layer in the bacteria. वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. उसमें थिन लेयर इज स्लाइम लेयर एंड थिक लेयर इज कैप्सूल. तो जो स्लाइमी लेयर है वो स्टिकी होती है, एडहेसिव होती है, वो सरफेस में अटैचमेंट में हेल्प करती है. सो ग्लाइकोकैलिक्स वुड बी द लेयर. सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिकी नहीं होती है. इट इज़ दी ग्लाइकोकैलिक्स विच इज स्टिकी. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोकैलिक्स. Moving ahead, select the mismatch. Gas vacuoles, green bacteria, large central vacuole animal cells, protist eukaryotes and methanogens prokaryotes. Methanogens are archaebacteria. They are monerans. और moneron is prokaryotic, ये बात ठीक है. Protist eukaryotic है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है. एनिमल सेल हैज स्मॉल वैक्यूल्स. और नो वैक्यूल्स. ठीक है. सो ये आपका मिसमैच है. गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया में मिलते हैं which is non-membrane bound. Gas vacuoles are non-membrane bound. Bacteria is prokaryotic organism और वहाँ पे non-membrane bound organelle मिलता है. ठीक है. Moving on.
A cell organelle containing hydrolytic enzymes, ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में. लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम या मीसोसोम. मीसोसोम जो इनफोल्डिंग है ये नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, माइक्रोसोम भी नहीं है. लाइसोसोम के अंदर आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं, जो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तभी हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बिकॉज इसमें अपने डीएनए है, अपना आरएनए है, अपना प्रोटीन्स है, खुद रेप्लिकेट कर सकता है, अपने राइबोसोम्स हैं. They are formed by the division of pre-existing organelles. ये बात बिल्कुल ठीक है. This sentence is correct. This statement is correct. And they contain DNA. ये बात ठीक है. But lack protein synthesizing machinery. ये गलत है. They contain DNA, RNA, and proteins. So this statement is correct. This statement is false. Both A and B are correct. Both A and B are incorrect. Only A is correct. B is correct. Only no. So answer to this question is option number 3. With this, we have completed this chapter. I'm going to meet you in the next class with the next chapter. Thank you.